Hello students, welcome again. Here now we are starting the next chapter which includes continuing the same unit money and banking which is of 6 marks. Now we are starting chapter number 6 banking. Okay. So banking which is an important portion for our monetary system. Banking involves a great help for all the people as we can get easily the loans, we can deposit our money, we can we can transfer the money, many of the services we can get, we can deposit, we can have our salaries account in that, and we need not to these days we need not to carry the cash to by ourselves because it's a risky, so we can transfer the money through that. Okay, many digital payments, online payments, and this draft, everything we can do with the help of the banks. Okay, so banks are an important part for running the economy. Okay, economy runs with the help of banks. If banks are not there, we will not get the money. From where we will get the money if we want the loan or if we want to deposit the money? And it's true that RBI prints the money, the currency, but that is being given with as a mediator through this banks. So here now we are starting the banks. First of all, I will want to give you the introduction for the banks. Okay. These are the portion banks. Okay. So banks, I have told you, banks is in whole economy is done with the help of the banks. Banks are of two types. First one is the central bank, and other one is the commercial bank. Central bank, two types of banks are there in every country. First one is the central bank, other one is the commercial bank. Okay? Now, central bank is the bank uh, which which prints the currency and which operates all the monetary all the banks in the country. Okay? तो हर देश में बेटा सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है और बाकी उसके अलावा जितने भी बैंक्स होते हैं वो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक्स. Why they are called commercial banks? Because their main motive is to earn the profit. Okay? So central bank is the bank which runs all the commercial banks. Okay? All the commercial banks works under the central bank and it keeps in custody किस बैंक के पास में कितना पैसा है, कौन सा बैंक कहाँ पर लोकेटेड है, ये कितनी सुविधाएं देता है, कुछ यहाँ पर करप्शन तो नहीं है ना. तो अगर जैसे कोई बैंक अगर दिवालिया निकलता भी है तो आरबीआई बैठा है उसके लिए ना. आरबीआई का सेंट्रल बैंक का दूसरा नाम आरबीआई भी है एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1st April in the year 1935. 1st April 1935 this was incorporated. Okay. So every country is having only one central bank and the names are different. The name of the central bank of India is the RBI, that is the Reserve Bank of India. Apart from RBI, whichever is the bank are known as the commercial banks, whether they are the national bank, they are the private banks, they are the government banks, public sector banks, okay, cooperative banks, all the other banks are known as the commercial banks. Okay. So this central bank part we will read afterwards. Okay. First here we are starting the commercial bank. What happened that commercial bank is the banks through which we people deal. We people can't deal with the central bank. With the central bank, who deals? Only the government, the state government, or the commercial banks. The people like us, हम जैसे लोग जो है सेंट्रल बैंक से डील नहीं करते हैं, हमारे वहाँ पे अकाउंट भी नहीं खोल सकते हैं. हम किससे डील करते हैं? हम कमर्शियल बैंक से डील करते हैं. क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक हमें ऑपरेट करते. अब इतने सारे लोग दुनिया पूरे कंट्री के लोगों के अकाउंट एक सेंट्रल बैंक के पास तो नहीं हो सकते ना, इसीलिए हम सेंट्रल बैंक से डील नहीं कर सकते हैं. तो उसके अलावा जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक है. अब कमर्शियल बैंक का जो बेटा मेन फंक्शन होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक इज अ बैंक व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स, मेक इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स. ठीक है, जो ऐसे बैंक जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स ग्रांट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस उद्देश्य से? प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल का मतलब ये है जहाँ पे प्रॉफिट अर्न हो रहा है. तो यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो हर एक इंस्टीट्यूशन को हम कमर्शियल बैंक नहीं कह सकते. जैसे कि LIC कमर्शियल बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस कमर्शियल बैंक नहीं है. क्यों पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे हम डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर हो जाते हैं हमारे, लेकिन हम वहाँ से लोन नहीं ले सकते हैं. इसीलिए कमर्शियल बैंक को हम वो नहीं बोलते हैं
सॉरी, इसलिए पोस्ट ऑफिस को हम बैंक्स नहीं बोलते हैं। तो बैंक वही होते हैं जहाँ पे हम अपने डिपॉजिट भी डिपॉजिट कर सकते, हमारे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट हो जाते हैं और हमें लोन भी ग्रांट हो जाता है, वो कहलाते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बेटा मेन दो फंक्शंस होते हैं, दैट इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड टू ग्रांट द लोन्स। These are functions of the commercial banks are not in your syllabus. Only one function is there, which is in your syllabus of the commercial bank, which is known as the money creation by the commercial bank. And apart this central bank is having 5 or 6 functions that you have to read in detail. Now first here we are starting with the commercial bank. Okay, now in the CSE board syllabus only commercial bank is having only one function, that is the money creation by the commercial bank. Now what is money creation? Money creation means पैसे को क्रिएट करना। वैसे तो ये काम सेंट्रल बैंक का है, लेकिन सेंट्रल बैंक का काम है पैसे को प्रिंट करना, करेंसी को प्रिंट करना। देश में जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है दैट इज प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक। अगर कोई और करेंसी को प्रिंट करता है तो वो इलीगल माना जाता है। सेंट्रल बैंक के पास में ये अपने पास में एक्सक्लूसिव राइट्स रखे हैं करेंसी को प्रिंट करने के लिए। अब कमर्शियल बैंक क्या करता है, मनी को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? ऐसा होता है जो भी उसके पास में लोन्स आते, मान लीजिए आपने उसके पास में डिपॉजिट किया ना, अब वो डिपॉजिट जो आपने सपोज करिए आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया। अब क्या होता है, आपको 6 ईयर बाद या 8 ईयर बाद अगर आप उसको विड्रॉ करते तो आपको कुछ पैसा बढ़ के मिलता है ना, लगभग डबल मिल जाता है। यानी मतलब 1 लाख का आपको 180 मिल जाएगा। कैसे मिल रहा है भैया? पड़े पड़े तो नहीं पैसा पड़ता ना। अगर हम आप वही पैसा घर में रखते किसी अपनी कबर्ड में तो क्या बढ़ जाएगा कुछ ही साल में? नहीं। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक उस पैसे को यूज करता है आगे लोन देकर के। तो इसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, पैसे को क्रिएट करते हैं, ताकि वो आगे जो है जब वो लोन देंगे तो उससे वो खुद भी पैसा कमाएंगे और साथ में और लोगों को भी लोन मिल सकेगा। क्योंकि जो हमारे पास जो हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं वो डिपॉजिट्स वहां के वहां नहीं रहते हैं, वो डिपॉजिट्स आगे दे दिए जाते हैं लोन लेने के लिए। अब आप ये सोच रहे हैं अगर वो आगे लोन दे दिए जा रहे हैं तो फिर हम अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो हमें कैसे मिलेंगे? वो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने पास में रिजर्व्स रखते हैं और उसके थ्रू जो है वो अपने इसको डिपॉजिट्स को अगर कोई मांगने आ जाता है तो बीच में उसको विड्रॉ उसको जो है दे दी जाती है वो अमाउंट बाय द कमर्शियल बैंक। तो मनी क्रिएशन एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है एक कमर्शियल बैंक की। किस तरीके से जो है इसको मनी को क्रिएट करा जाता है ना, कैसे ये प्रोसेस पूरा चलता है कि हम जो है करेंसी को प्रिंट करते हैं और सॉरी करेंसी मनी को क्रिएट करते हैं, ये कैसे सब कुछ चलता है। ठीक है, सो दिस commercial bank function money creation is an important aspect for this part for today. Okay?